Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And as a series, now we are discussing about General Financial Rules 2017. Chapter first we have discussed, and this is the second chapter. So General Financial Rules 2017, second chapter we are going to discuss. In first chapter we have seen commencement, applicability and extent. Commencement, applicability and extent in rule number 1 and definitions in rule number 2. In chapter 2 we are going to discuss some other forms of General Financial Rules 2017. Before we move to next slide, just note it down. This GFR is issued under the Ministry of Finance, Department of Expenditure. Very important MCQ. Very important MCQ. This GFR has been issued by Ministry of Finance under Department of Expenditure. This is chapter 2 और चैप्टर 2 का जो हेडिंग है वो जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स आर डन. फाइनेंस मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन is not so easy because it's a vast organization and scope of left and right is more. So financial system of government department has to be sound beyond any doubt. It has to be reasonable beyond any imagination. So chapter number 2, and here we are going to discuss about rule number 7 because rule number 3, 4, 5, 6 we have discussed in previous video itself. So rule number 7 में क्या कहते हैं, all monies received by or on behalf of government either as dues of government or for deposit, remittance or otherwise shall be brought into government account without delay. So अगर कोई गवर्नमेंट ड्यू हम कलेक्ट करते हैं, दिस इज टॉकिंग अबाउट कलेक्शन. अगर गवर्नमेंट ड्यूज अगर हम कलेक्ट करते हैं, दूसरा आदमी डिपॉजिट करता है तो हम कलेक्ट एज ए गवर्नमेंट बॉडी हम कलेक्ट करते हैं. सो गवर्नमेंट अमाउंट अगर हम कलेक्ट करते हैं तो इट शुड बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले. सो आज मैं यहाँ चला गया, कल मैं वहाँ चला गया, परसों मैं था नहीं, चौथा रोज मैं छुट्टी चला गया इसलिए मैं दे नहीं पाया, सॉरी, दिस इज नॉट द वे. द मोमेंट यू कलेक्टेड गवर्नमेंट मनी, देन एंड देयर यू हैव टू डिपॉजिट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट. दैट इज व्हाट मेंशन्ड in the various rules issued under article 150 and 283 of constitution of India. So गवर्नमेंट मनी अगर हम रिसीव करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के कैपेसिटी में तो हमें देन एंड देयर गवर्नमेंट अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना है. उसको हम ड्रायर में नहीं रख सकते, उसको हम बैग में नहीं रख सकते, उसको टेबल पे नहीं रख सकते, उसको कहाँ रख सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट में ही डालना है. ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है तो वो झंझट ही खत्म है, कैश का झंझट ही खत्म है, सब ऑनलाइन हो जाता है. चालान क्रिएट करके पार्टी पे कर देती है, हमें सिर्फ अपना अकाउंट रियलाइजेशन करना होता है. रूल नंबर 8 एंड दिस टॉक्स अबाउट आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं कि मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इन हिज कैपेसिटी एज सच other than revenue or public money raised or received by government shall be paid into public account. So in the previous classes we have seen there are 3 categories of government accounts. There are 3 types of government accounts: consolidated account, finance public account and
third one is contingency account. So consolidated account, contingency account and public account. Consolidated account, all revenue. Contingency account, it is a fixed amount and it is spent as and when required. Public account, other than these two are public account, generally deposits. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे. सो शैल बी पेड इनटू पब्लिक अकाउंट. ये सब जितने आएंगे डिपॉजिट जो हम लेंगे, किसी भी प्रकार की डिपॉजिट हम लेंगे, इट विल गो टू पब्लिक अकाउंट. अब रूल 11, रूल 8 के बाद रूल 9 है, बट वो जो GFR का बुक है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें इसी हिसाब से वो पैरेलली ही वो हो पाता है, इसलिए हम रूल 9 इसके बाद पढ़ेंगे. हालांकि ये रूल 8 का 1 है, रूल 8 का 2 भी हमें नीचे पढ़ना है. अभी हम रूल 11(2) देख लेते हैं. इन डिपार्टमेंट्स इन विच ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड इशू रिसीट देयर फॉर. सो क्या कर रहे हैं रूल 11 में? रूल 11 में ये कह रहे हैं कि हम जहाँ कहीं भी मनी रिसीव करेंगे पब्लिक से, उस मनी रिसीव के अगेंस्ट में हमें उनको रिसिप्ट इशू करना है. ब्रांच ऑफिस में हम 120 रुपीज़ कैश रिसीव करते हैं, रूल 6061 में. सो हमें क्या करते हैं, हम उसके वो 120 ले करके और उनको हम रिसीट देते हैं. तो इसी तरीके से हम कई प्रकार के रिकवरी भी लेते हैं. सो रिकवरी भी ले करके हम उनको रिसीट देते हैं. सो क्या करना है, अगर पब्लिक मनी कुछ लेना है तो उसको रिसिप्ट भी देना है. ठीक है साहब, इसको ध्यान में रखना है. बिना रिसिप्ट का पब्लिक मनी नहीं लेना है. So provided for the maintenance of proper account and receipt and issue of the receipt book. The number of receipt books to be issued at a time to each officer and check with the officers accounts of the used books when returned. So क्या बता रहे हैं कि जितना भी पब्लिक ऑफिसेस है, पब्लिक ऑफिसेस में रिसीट बुक इशू करना है और उसका काउंटर पार्ट रिसीव भी करना है. इसका मतलब कि ऑडिट करनी है. ठीक है. रूल 12, amounts due to government shall not be left outstanding without sufficient reason. So amount dues to government, क्या मतलब हुआ, अगर किसी पार्टी के पास गवर्नमेंट का ड्यूज बाकी है और एज ए रिकवरी अफसर अगर मुझे रिकवर करने का ड्यूटी मिला है, सो मैं उसको ऐसे ही मैं उसको सस्पेंस जोन में नहीं छोड़ दूंगा. चलता है चलने दो भाई, नहीं चलेगा. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उनको हम रिकवर करें किसी कारण से. रेयरेस्ट इन द रेयर केसेस, किसी कारण से अगर हम रिकवर नहीं कर पाते हैं तो हमें उसके लिए सफिशिएंट रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज विदाउट सफिशिएंट रीज़न गवर्नमेंट ड्यूज शैल नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग. All money received by or deposited with the Supreme Court of India or with any other court other than a high court within a union territory shall also be dealt with in accordance with clause 1 of sub rule 1. ये रूल 8 का 1 का बात हो रहा है. रूल 8 के 1 में क्या बोल रहे हैं, रूल 8 के 1 में बोल रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट में जमा करना है पैसा. जितना भी मनी रिसीव्ड होता है उसको पब्लिक अकाउंट में जमा करना है. तो सेम रूल अप्लाई होगा कोर्ट में भी जो पैसे रिसीव किए जाते हैं. कई बार बेल सिक्योरिटी देते समय भी अमाउंट जमा करना पड़ता है और भी प्रकार के बहुत से ड्यूज होते हैं कोर्ट में. तो कोर्ट के भी जो ड्यूज हैं वो भी पब्लिक अकाउंट में ही जमा किए जाएंगे. रूल 8(2) रूल 8(2) को हेड ऑफ द अकाउंट टू विच मनी शैल बी क्रेडिटेड विद एन. सो यहाँ पर हेड ऑफ द अकाउंट की बात कर रहे हैं. रूल 8(2) में विच हेड पूछेंगे कि किस हेड में ये जमा करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रूल 1983 है. उसके अनुसार हेड डिसाइड किया जाता है. कौन सा हेड है, किस हेड में पे करना है, रिलेवेंट हेड में ही पे करना है. ठीक है. रूल 9, it is the duty of the department of the central government concerned
to ensure that receipt and dues of the government are correctly and promptly assessed, collected and duly credited to the consolidated fund or public fund as the case may be. So यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर हैं उनको इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, दैट रिसिप्ट एंड ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट आर करेक्टली एंड प्रॉम्प्टली असेस्ड। सबसे पहले तो असेसमेंट सही होना चाहिए। हम जिससे भी ड्यू लेने जा रहे हैं, रिकवरी ले रहे हैं, ड्यू ले रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हमारा असेसमेंट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद से सेम अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए। पहले क्या है, हमें जो जितना ड्यू इम्पोज करना है उसको करेक्टली उसको असेस करना है, करेक्टली असेस करने के बाद से उसको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद से उसको गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर का 3 मेन काम हो गया। रूल 9 के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफिसर इसके काम के लिए डिप्यूटेड हैं, उनके मेन 3 काम है। पहला काम ये है कि जो रिसीट एंड ड्यूज है वो प्रॉम्प्टली असेस किया जाए। दूसरा है उसको एग्जैक्ट अमाउंट कलेक्ट किया जाए, और तीसरा क्या है, वो जो कलेक्टेड अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में, पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड अकाउंट जो भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है उस अकाउंट में उसको जमा किया जाए। ये 3 मुख्य कार्य है रूल 9 में। रूल 10 को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। रूल 13, अनलेस स्पेशली ऑथराइज बाय एनी रूल और अंडर मेड और ऑर्डर मेड बाय competent authority, no sum shall be credited as revenue by debit to a suspense head. The credit must follow and not precede actual realization. So क्या है, unless specifically authorized by any rule or order made by the competent authority, no sum shall be credited as revenue. So revenue क्रेडिट तभी किया जाएगा जब उसके लिए स्पेसिफिक रूल कंपिटेंट अथॉरिटी बनाती है। अगर रूल नहीं बनता है तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट रूल है। रूल 14, subject to any general or special orders issued by a department of central government or administrator or head of the department responsible for collection of revenue shall keep the finance ministry fully informed. So क्या करना है, चाहे जिस किसी भी पोजीशन में आप कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करने के बाद से आपने कलेक्ट किया, आपने असेस किया, असेस करने के बाद से कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद से गवर्नमेंट अकाउंट में जमा किया, दैट हैज़ टू बी इंटीमेटेड टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो कैसे इंटीमेट करते हैं, उसका क्या है, मंथली स्टेटमेंट बनता है। मंथली स्टेटमेंट हम अपने डिपार्टमेंट हेड को भेजते हैं, डिपार्टमेंट हेड उस मंथली स्टेटमेंट को फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजते हैं। ठीक है साहब। रूल 15 टॉकिंग अबाउट रेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स। सो रूल 15 के अनुसार व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ एनी रेंटेबल बिल्डिंग इज इंटरेस्टेड टू ए सिविल डिपार्टमेंट अदर देन CPWD। सो कहने का मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग शुड बी डन जनरली बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, दैट मेंटेनेंस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड टू CPWD। किसी कारण से अगर CPWD को नहीं दिया जाता, अदर देन CPWD किसी और डिपार्टमेंट को दिया जाता है, द एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूज रिकवरी ऑफ द रेंट देयर ऑफ। ये MCQ में आया था। ये पिछली बार UPSC ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि दिस रेंट विल बी रिकवर्ड बाय CPWD, कंसर्न्ड एजेंसी, हेड ऑफ द ऑफिस, लाइक दैट क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू रिकवरी ऑफ द रेंट देयर ऑफ। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब MCQ के पॉइंट हैं। इसको इतने हल्के में ना लें, ये सब एग्ज़ाम के समय में काम आने वाले हैं। सो गवर्नमेंट अकाउंट के बारे में हम बता चुके हैं।
कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। इनके बारे में हम पहले चैप्टर में ही, फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं। अब रूल नंबर 10, द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल अरेंज टू obtain फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। अभी हम क्या बात कर रहे थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमें इंटीमेट करना। कैसे इंटीमेट करेंगे? ब्रांच ऑफिस में मैं मनी कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मंथली स्टेटमेंट में मैं ROSRO को बता रहा हूँ, ROSRO मंथली स्टेटमेंट में हेड क्वार्टर को बता रहा है, और हेड क्वार्टर मंथली स्टेटमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री को बता रही है। ये चैनल है। इसलिए क्या है कि द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल अरेंज टू obtain फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न इन सुटेबल फॉर्म। सो एक लेट डाउन फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमारा जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है उसको हम मंथली बेसिस पे भेजते हैं। वही चीज़ें नीचे भी दी हुई है। Accordingly, each account officer will send an extract from his accounts showing the amount brought to credit in the account in each month to the controlling officer concerned। ठीक है साहब। रूल 15, रूल 15(1) में भी हम अदर देन CPWD के बारे में हम रेंट की बात कर रहे थे। The procedure for the assessment and recovery of rent of any building hired out will be regulated regionally by the rules applicable to buildings under the direct charge of the CPWD। So जो रेंट जो असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होगा? उसका जो रेंट असेसमेंट होगा वो इस तरीके से होगा एज इफ द बिल्डिंग इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ CPWD। कहने का मतलब कि CPWD ने जो भी रेंट डिसाइड किया होगा उसी के अनुसार होगा। द डिटेल्ड रूल्स प्रोसीजर रिगार्डिंग द डिमांड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ गवर्नमेंट्स आर कंटेंट इन डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस एंड डिपार्टमेंट्स इन चार्ज ऑफ दोज बिल्डिंग्स। सो ये क्या किया है, रूल 15 जो है ये एक इनेबलिंग रूल है। ये रूल जो है डिपार्टमेंट को ऑथराइज करता है कि डिपार्टमेंट को अपना रेंट रिकवरी के लिए डिपार्टमेंटल रेगुलेशन बनाना है। ये देखिए, रूल के बाद रेगुलेशन बनते हैं। सो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन बनाने के लिए ये रूल 15 जो है इनेबलिंग रूल है, राइट। रूल 15, फाइन्स। एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू इम्पोज and or realize a fine shall ensure that the money is realized, duly checked and deposited into a treasury or bank as the case may be। Very important part। क्या होता है, जो फाइन इम्पोजिंग अथॉरिटी है, कई बार फाइन इम्पोज करना पड़ता है। दिस इज रिलेटेड टू रेंटेड बिल्डिंग। सो अगर फाइन इम्पोज जो भी एजेंसी फाइन इम्पोज करती है उस एजेंसी की ये भी ड्यूटी है, फाइन इम्पोज तो आपने कर दिया, ये भी ड्यूटी है दैट फाइन इज रियलाइज्ड एंड इट इज क्रेडिटेड टू द ट्रेजरी और बैंक अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट। सो फाइन सिर्फ फाइन इम्पोज ही नहीं करना है, फाइन कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उस डिपार्टमेंट के अकाउंट में डाल देना भी उसी अथॉरिटी का काम है। ऐसा नहीं कि फाइन इम्पोज करके भाग गए। एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू रिफंड फाइन्स शैल एंश्योर दैट द रिफंड्स आर चेक्ड एंड नो डबल रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन कलेक्टेड और रिफंड ऑफ फाइन नॉट रेगुलर। सो क्या है, कई बार रिफंड करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग ITR भर रहे हैं ना, ITR भर रहे हैं और विदिन 1 वीक में रिफंड आ रहे हैं। सो रिफ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। रिफ़ंड करने वाले अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि ये चेक करें कि कहीं 2 बार तो हमने रिफ़ंड नहीं कर दिया, कहीं 3 बार तो हमने रिफ़ंड नहीं कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल 17 टॉक्स अबाउट मिसलेनियस डिमांड्स। अकाउंट्स ऑफिसर शैल वॉच द रियलाइजेशन ऑफ miscellaneous demands of government not falling under the ordinary revenue station, such as contribution from state government, local funds, contractors and other towards establishment charges. So accounts officer shall watch the realization of the miscellaneous demand of the government।
मिसलेनियस डिमांड जो है वो अलग से होता है। तो मिसलेनियस डिमांड जो होता है उस पर वॉच रखना है और उसको बाकी जो डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस हैं, जो रेवेन्यू है, उनके साथ उनको मिंगल अप नहीं करना है, वो अलग ये अलग। रूल 18 very important. Remission of revenue. A claim to revenue shall not be remitted or abandoned save with the sanction of the competent authority. कई बार ऐसा होता है कि चाहे ब्रांच ऑफिस ओवर पेमेंट कर दिया हो और चाहे रिकवरी ब्रांच को कुछ रिकवर करना हो कंपनी से, इन दोनों केसेस में लंबे समय तक ऐसा देखा गया है कि एक या दो ऐसे भी केसेस होते हैं जो रिकवरी नहीं हो पाते हैं। तो अगर उसको रिमीट करना है, रेमिटेंस उसका करना, रिमिशन करना है, अगर उनको वेव ऑफ करना है, सो वेव ऑफ हम नहीं कर सकते। वेव ऑफ करने की हमसे सुपीरियर अथॉरिटी के पास पावर है। सो इसलिए वेव ऑफ करने के लिए, अबेंडन करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लेना आवश्यक है। बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन के वो अमाउंट अकाउंट में चलता रहेगा, उसका रेमिशन नहीं हो सकता है, राइट। रूल 19, सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अदर देन दोज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शैल सबमिट एनुअली ऑन द 1st June to the audit officer and the accounts officer concerned a statement showing the remission of revenues and abandonment of claims to revenue sanctioned during the preceding year by competent authorities. Very important question. This question I think it was in last UPSC exam. So ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको अपना जितना भी रेमिशन किए हैं, अबेंडन किए हैं, उनका स्टेटमेंट साल भर का 1 जून के हिसाब से ऑडिट अफसर को भेजना है, एक्सेप्ट पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी सभी डिपार्टमेंट एनुअली ऑन 1 जून ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स अफसर कंसर्न्ड को जितना रेमिशन हुआ है, जितना अबेंडनमेंट हुआ है, उसका स्टेटमेंट भेजना है। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट MCQ के व्यू से, 1 रुपये का ₹1000, देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल रिमिशंस बिलो ₹1000 डिड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। सो 1000 रुपीज़ से नीचे का अगर रिमिशन है, अबेंडनमेंट है, वेवर है, सो उसको स्टेटमेंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 1000 से नीचे का जो हो वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स को जब हम भेजते हैं साल में एक बार 1 जून को, उसमें 1000 से नीचे वाला जो अमाउंट है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको उस स्टेटमेंट में डालना है। रूल 19(1) में 2 MCQ के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये रूल 16 है। आपको मैंने बताया था कि इस साइड वाला जो राइट साइड में ये अलग से चल रहा है। ये राइट साइड में रूल 16 में हमने फाइन देखा था और इसी रूल 16 का ये कंटिन्यूएशन है। सो every officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. जितने लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पब्लिक मनी जो है उसके जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको उतनी ही बुद्धिमत्ता दिखानी है, उतनी ही इंटेलिजेंस दिखानी है, उतनी ही प्रूडेंस दिखानी है खर्चे करते समय, जितना हम अपने पॉकेट मनी को खर्चा करते हैं। हम अपने मनी को खर्चा करते समय बहुत सावधानी बरतते हैं, उतनी ही वैसे ही समझदारी, उससे भी ज़्यादा समझदारी हमें पब्लिक मनी को खर्चे करते समय दिखानी पड़ेगी। हम उसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। सो जितना उस ओकेजन का जो डिमांड है, जितना उस ओकेजन पे एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, जितना उस ओकेजन पर एक्सपेंडिचर करने का डेलीगेशन हो,
रूल हो, उससे 1 रुपया ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। No authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to his own advantage. So as a public officer हमें क्या करना है, बहुत से एक्सपेंसेस को हमें सेंक्शन करना है, पास करना है, अप्रूव करना है। हमें कोई भी सेंक्शन ऐसा अप्रूव नहीं करना है जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं बेनिफिटेड हो रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ROSRO में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन होता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 225 रुपीज़ पर हेड कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ऐसा मेंशन है। तो उसका सेंक्शन हमने ले लिया। उसके बाद से क्या है, मान लीजिए कि जो वहाँ पर जो कैंटीन है, चाहे वो अगल बगल में जो होटल है, वो समहाउ मेरे फैमिली से रिलेटेड है। समहाउ आई एम कनेक्टेड विद दैट होटल और रेस्टोरेंट और कैंटीन। वहाँ से मैं उस आइटम को मंगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पेन ले रहे हैं, स्टेशनरी आइटम ले रहे हैं, मेरे चाहे मेरे फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा शॉप हो, वहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे 1 रुपीज़ चाहे 10 रुपीज़ आई एम गेटिंग बेनिफिटेड। इसलिए पब्लिक मनी को ऐसे जगहों पे खर्चा नहीं करना है जहाँ से वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जहाँ से वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाए, राइट। एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और ए सेक्शन ऑफ पीपल। अब देखिए क्या है, पब्लिक मनी का जो खर्चा है, पब्लिक मनी का जो एक्सपेंडिचर है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ इस तरीके से तोड़ मोड़ कर करके और कुछ रूल बनाएं जिससे मैं किसी व्यक्ति विशेष को फेवर कर सकूं, ऐसा नहीं करना है। अनलेस until a claim for the amount could be enforced in court of law, the expenditure is in pursuance of a recognized policy or custom। अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर सकते। For inclusion in the statement referred to in Rule 19 above, remission and amendment should be classified broadly with reference to the grounds on which। So अभी हम Rule 19 में क्या बात कर रहे हैं, वेवर का बात कर रहे हैं, रेमिशन का बात कर रहे हैं, अबेंडनमेंट का बात कर रहे हैं। So उसमें अगर हम वेवर करते हैं, अबेंडनमेंट करते हैं, रिमिशन करते हैं, तो हमें वो स्पेसिफिकली वो ग्राउंड मेंशन करना पड़ेगा, किस ग्राउंड पे हमने उसको वेवर किया है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द रेमिशन शुड बी एडेड इन द केस ऑफ ईच क्लास। सो ये प्रत्येक वेवर को आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है कि हाउ विच सर्कमस्टेंसेज विच सिचुएशन लेड यू फॉर द वेवर। ठीक है। Department of Central Government Administrators may make rules defining remissions and amendment of revenue for the purpose of Rule 19 above। Rule 20 क्या हो गया, फिर से इनेबलिंग रूल हो गया। इनेबलिंग रूल का मतलब क्या हुआ, ये डिपार्टमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि Rule 19 को रेगुलेट करने के लिए आप अलग से रेगुलेशन बनाइए। Rule 19 में ब्रॉडली जो प्रोविज़न है वो मेंशन कर दिया गया। उसके बाद Rule 19 को फर्दर रेगुलेट करने के लिए आपको उसके लिए रेगुलेशन बनाना है, ऐसा Rule 20 में कह रहा है, राइट। उसके बाद से चैप्टर 2 में एक ये अलग से पार्ट 1 आता है, जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी। आप ध्यान देंगे Rule 20 तक हमने क्या पढ़ा, रिसिप्ट के बारे में पढ़ा, रियलाइजेशन के बाद में पढ़ा, हम कैसे असेस करेंगे ड्यूज को, उसको रिसीव कैसे करेंगे, और पब्लिक अकाउंट में उसको हम पे कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर हम पे नहीं कर सकते, अगर कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको अबेंडनमेंट, रिमिशन, उसको एग्जेम्पशन, उसका वेवर कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा। सो इससे पहले वाले अप टू Rule 20 हमने कलेक्शन,
डिपॉजिट टू गवर्नमेंट अकाउंट, इफ़ नॉट कलेक्टेड देन वेवर, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी जो पार्ट 1 आ रहा है इसमें हम एक्सपेंसेस के बारे में, इससे पहले वाले में हम कहीं एक्सपेंडिचर का हमने नहीं पढ़ा है। एक्सपेंडिचर का हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे, ये जहाँ पे ये रूल 21 से शुरू हो रहा है। इससे पहले वाला जो राइट साइड में हमने एक्सपेंडिचर का पढ़ा था वो इसी का पार्ट है। एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, हम अपने लाभ के लिए हमें एक्सपेंडिचर नहीं करना है, वो सब हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। सो जो हम इससे पहले वाले पढ़े थे आपको हम दिखाते चले, कोई डाउट ना हो। ये रूल 21 का पार्ट है। ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस एक्सपेंडिचर इज पार्ट ऑफ रूल 21। ठीक है साहब, रूल 22 इसके आगे है, ये रूल 22 है, रूल 21 है, इस रूल 21 को आगे तक ले गए थे। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोप्राइटी। So rule 21 says about standard of financial propriety. Every officer incurring or authorizing expenditure from public money should be guided by high standard of financial propriety. Propriety मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब मैं इस तरीके से उस पब्लिक फंड से डील करूं जैसे मैं उसका ऑनर हूं, और मुझे जुडिशियली उसको कैसे यूज़ करना है, प्रोपोर्शनेटली मुझे उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन नहीं होता है, उसके लिए डिपार्टमेंटल रेगुलेशन होते हैं, और उस डिपार्टमेंटल रेगुलेशन के अनुसार ही आपको फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को डील करना है, ऐसा रूल 21 में मेंशन किया हुआ है। रूल 22, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स। No authority may incur any expenditure or enter into any liability involving expenditure or transfer of money for investment or deposit from public money unless the same has been sanctioned by a competent authority. ठीक है साहब, जब तक competent authority का सैंक्शन नहीं हो आप 1 रुपये पब्लिक फंड से खर्चा नहीं कर सकते, न पब्लिक फंड से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और न पब्लिक फंड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे पब्लिक फंड से एक्सपेंडिचर हो, चाहे पब्लिक फंड से इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना है, उसके बाद ही आप खर्चा कर सकते हैं, ऐसा रूल 22 में मेंशन है। रूल 23 वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। The financial powers of government have been delegated to various subordinate authorities wide. Delegation of financial power rules as amended from time to time. आपको याद होगा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 का हमने क्लासेज अपलोड कर रखा है हमारे इस SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों ने उसको देखा भी है। सो क्या है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स GFR के कनेक्शन में है। GFR को के साथ उसको मिला करके पढ़ना है, जिसको GFR समझ में आएगा वही डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स को समझ सकता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्या, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स इज सप्लीमेंट्री टू GFR 2017. So the financial powers of the government which have not been delegated to any subordinate authority shall vest in the finance ministry. Very important MCQ. जो पावर कहीं भी डेलीगेट नहीं हुआ है, कहने का मतलब कि रेसिड्यूरी पावर वेस्ट विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। जुडिशरी में रेसिड्यूरी पावर किसके पास होता है? कुछ पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, कुछ पार्ट CGM कोर्ट के पास होता है, कुछ पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है, कुछ पावर हाई कोर्ट के पास होता है, कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। रेसिड्यूरी पावर रेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट, जो किसी के पास नहीं होता वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। उसी तरीके से जब लेजिस्लेशन करते हैं तो कुछ लॉज बाय लॉज स्टेट बनाती है,
कुछ कुछ स्टेट बनाती है, कुछ सेंट्रल बनाते हैं। तो जो रेसिड्यूरी पावर है, जो कहीं पे नहीं मेंशन किया हुआ, रेसिड्यूरी पावर वेस्ट विद द पार्लियामेंट। उसी तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड रेसिड्यूरी पावर वेस्ट विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ हम रूल 23 तक ही पढ़े हैं। रूल 24 को कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑल ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो। और सो इसमें क्या है, कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजरी, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का, जिस भी मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर हो, अगर उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है तो उनको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन करना ही है। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन के उसको आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा रूल 24 में मेंशन है। बाकी इसके जो पार्ट हैं नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आपके अपने SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। कमेंट भी ठीक ठाक आ रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर किया कीजिए। दूसरा चैनल SGKG 2.22, जिस पर मुख्यतः इंटरव्यू टेक्निक है, इंग्लिश क्लासेज हैं और RTI क्लासेज हैं, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन